بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میں آپ سب کی معلمہ سائمہ کنول ساتکین گرامر اسکول کی جانب سے شروع کیے جانے والے فاصلاتی تدریسی پروگرام کے ذریعے سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ عزیز طلبہ، تصویر میں نظر آنے والے دو طرز کے تعلیمی اداروں کو دیکھ کر آپ کو ہمارے آج کے موضوع کے بارے میں اندازہ ہو ہی چکا ہوگا۔ تو آئیے طلبہ، اب باقاعدہ طور پر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے مکالمہ نگاری۔ دو طلباء کے درمیان، نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں کے درمیان معیار کے تضاد پر مکالمہ۔ عزیز طلباء، آپ کو آج مکالمہ نگاری کرنی ہے دو طلباء کے درمیان نجی یعنی پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں کے درمیان جو فرق موجود ہے، جو تعلیم کا فرق ہے، معیار کا فرق ہے، اس پر مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مکالمہ نگاری کی طرف۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مکالمہ نگاری ہے کیا؟ دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو مکالمہ نگاری کہلاتی ہے۔ تحریری مکالمہ کے ذریعے کرداروں کا تعارف کروایا جا سکتا ہے، کرداروں کے خیالات کی عکاسی بھی کی جا سکتی ہے۔ مکالمہ کے ذریعے کسی موضوع کے مثبت اور منفی پہلو سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مکالمہ نگاری کیا ہوتی ہے۔ دو یا دو سے زائد افراد جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ گفتگو مکالمہ کہلاتا ہے۔ جب مکالمے کو تحریری شکل دی جاتی ہے یعنی کہ لکھا جاتا ہے تو وہ تحریری مکالمہ کہلاتا ہے۔ اس مکالمے میں کرداروں کا نہ صرف تعارف کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ کردار کیا سوچتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، ان کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ مکالمہ نگاری کے ذریعے سے کسی بھی موضوع میں اس کے مثبت اور منفی پہلو کو سامنے لایا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا اچھائیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں۔ تو عزیز طلباء، آئیے اب اپنے مکالمے کی طرف چلتے ہیں اور اس کی تحریر کس طرح سے کرنی ہے آپ کو یہ سمجھتے ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے اب مکالمہ نگاری کے لیے کچھ اشارات کی طرف چلتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ اشارات آپ کو آپ کا مکالمہ تحریر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ نجی تعلیمی ادارے، مثبت پہلو۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی معیاری تعلیم کا حصول، طلباء کے لیے تعلیمی سہولیات کی فراوانی، سوچ و فکر اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے امدادی ذرائع، ہم نصابی سرگرمیاں۔ عزیز طلباء، اشارات کو آپ نے اپنا مکالمہ تحریر کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ معلوم ہو کہ دو دوست آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دو دوستوں کے کردار کو اس طرح سے پیش کریں گے کہ پتہ چلے کہ ان کے درمیان نجی یعنی پرائیویٹ تعلیمی ادارے اور سرکاری تعلیمی اداروں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک طالب علم نجی تعلیمی اداروں کے حق میں ہے اور دوسرا طالب علم سرکاری تعلیمی اداروں کے حق میں ہے، اور دونوں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے لیے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ اپنا مکالمہ
आगाज़ करते हुए कोई दो तलबा के नाम तजवीज़ कर लेंगे, जैसे एक अली जो कि निजी तालीमी इदारों के हक़ में है, अपनी दलील पेश करेगा कि निजी तालीमी इदारों में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा मौजूद होते हैं जो अपनी ज़ेर निगरानी तलबा को मेयारी तालीम के हुसूल में मदद देते हैं। निजी तालीमी इदारों में तलबा के लिए तालीमी सहूलियात की फरावानी होती है। सोच व फ़िक्र और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए न सिर्फ असातिज़ा मदद करते हैं बल्कि इमदादी ज़राए जैसे कंप्यूटर वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम निसाबी सरगर्मियाँ यानी खेल कूद और इसी तरह के बहस मुबाहिसे वगैरह होते रहते हैं, जिसकी वजह से तलबा को अपनी सोच व फ़िक्र और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मदद मिलती है। अज़ीज़ तलबा, आइए अब निजी तालीमी इदारों के कुछ मनफी पहलू के इशारात के बारे में जानते हैं। भारी फ़ीसों की वसूली, निसाब, नोटबुक और यूनिफॉर्म इदारे से ख़रीदने की पाबंदी, भारी सालाना फ़ंड्स की अदायगी, वाजिबात की अदायगी में रियायत की कमी। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको बताया, दो तालिबे इल्म निजी तालीमी इदारों और सरकारी तालीमी इदारों के दरमियान तालीम के मेयार के तज़ाद पर मुकालमा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जैसा कि पहले तालिबे इल्म अली ने निजी तालीमी इदारों के हक़ में अपने दलाइल पेश करे, इसी तरह अब दूसरा तालिबे इल्म जिसका नाम असद हो सकता है, जो कि सरकारी तालीमी इदारों के हक़ में है, निजी तालीमी इदारों के मनफी पहलू के बारे में दलाइल पेश करेगा और अपने दलाइल पेश करते हुए ये कह सकता है कि निजी तालीमी इदारों में भारी फ़ीसें वसूल की जाती हैं, निसाब, नोटबुक और यूनिफॉर्म इदारे से ही ख़रीदने की पाबंदी होती है, वो बाहर से नहीं ख़रीदे जा सकते, जिसकी वजह से ये जेब पर भारी भी पड़ते हैं। इसके अलावा निजी तालीमी इदारों में भारी सालाना फ़ंड्स की अदायगी करना भी लाजमी होता है और इसके अलावा वाजिबात की अदायगी में किसी किस्म की कोई कमी, कोई रियायत नहीं की जाती। इसीलिए निजी तालीमी इदारों के बारे में उसका ख़याल है कि इतने बेहतर नहीं होते। अज़ीज़ तलबा, आइए अब सरकारी तालीमी इदारों के मनफी पहलू के बारे में जानते हैं। आला तालीम याफ्ता असातिज़ा की गैर हाज़िरी, सिर्फ किताबी निज़ाम मुकम्मल करवाने पर ज़ोर, सोच व फ़िक्र और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का फुक़दान, इमदादी ज़राए की गैर मौजूदगी, हम निसाबी सरगर्मियों का फुक़दान। अज़ीज़ तलबा, अब आप दोनों तलबा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मकालमे की सूरत में आगे बढ़ाएंगे और दूसरा तालिबे इल्म असद, जो कि सरकारी तालीमी इदारों के हक़ में है, अपने दोस्त से बात करेगा और उसका दोस्त अली, जो कि निजी तालीमी इदारों के हक़ में है, उसे सरकारी तालीमी इदारों के मनफी पहलुओं के बारे में बताते हुए, बात करते हुए कहेगा कि सरकारी तालीमी इदारों में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा मौजूद नहीं होते। अक्सर असातिज़ा छुट्टी पर होते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई पर असर पड़ता है और अगर असातिज़ा मौजूद भी हों तो सिर्फ़ और सिर्फ किताबी निसाब मुकम्मल करवाने पर ज़ोर दिया जाता है, यानी सिर्फ किताबों से ही पढ़ाया जाता है। सोच व फ़िक्र और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का फुक़दान होता है, क्योंकि इमदादी ज़राए की गैर मौजूदगी होती है, यानी लाइब्रेरी में बुक्स की गैर मौजूदगी। अव्वल तो लाइब्रेरी ही नहीं होती, अगर हो तो वहाँ पर कुतुब नहीं मिलती, कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते। हम निसाबी सरगर्मियों का भी फुक़दान होता है, जैसा कि
निजी तालीमी इदारों में खेल कूद करवाए जाते हैं। बहस व मुबाहिसे, तकारीर के मुकाबले, मुकाबला मजमून नवीसी और इसी तरह के दीगर हम निसाबी सरगर्मियाँ जो कि तलबा में सोचो फ़िक्र और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का सबब बनती हैं। सरकारी तालीमी इदारों में इस तरह की हम निसाबी सरगर्मियों का फुकदान होता है, जिसकी वजह से तलबा सिर्फ़ और सिर्फ किताबी निसाब ही मुकम्मल कर पाते हैं और उनमें सोचने और फ़िक्र करने और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का फुकदान होता है। आइए तलबा सरकारी तालीमी इदारों के मुस्बत पहलू के बारे में जानते हैं। मामूली फ़ीसों की वसूली, निसाब और नोटबुक की इदारे की तरफ से मुफ्त फराहमी, इंतहाई मुनासिब सालाना फ़ंड्स, वाजिबात की अदायगी में रियायत। तो तलबा आप अपने मुकालमे को आगे बढ़ाएंगे और अली और असद की गुफ्तगू आगे तहरीर करेंगे और असद जो कि सरकारी तालीमी इदारों के हक़ में है, अपने दोस्त अली को सरकारी तालीमी इदारों के मुस्बत पहलुओं के बारे में कुछ इस तरह से अपनी दलाइल पेश करेगा कि सरकारी तालीमी इदारों में बहुत ही मामूली फ़ीस वसूल की जाती है। निसाब और नोटबुक इदारे की तरफ से मुफ्त फराहम किए जाते हैं तलबा को और इंतहाई मुनासिब सालाना फ़ंड्स वसूल किए जाते हैं जो कि जेब पर इतने भारी भी नहीं पड़ते। वाजिबात की अदायगी में रियायत दी जाती है ताकि हर तालिब इल्म अपनी फ़ीस और वाजिबात आसानी से अदा कर सके और ऐसे तालिब इल्म जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन निजी तालीमों की भारी फ़ीसें अदा नहीं कर सकते, उनके लिए ये सरकारी तालीमी इदारे किसी नेमत से कम नहीं हैं जहां वो मामूली फ़ीसों में तालीम हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, आइए अब दोनों तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए तजावीज़ की तरफ चलते हैं। फ़ीसों और सालाना फ़ंड्स में कमी की जाए, हालात के मुताबिक वाजिबात की अदायगी में रियायत दी जाए, आला तालीम याफ्ता असातिज़ा का तकर्रुर किया जाए, हम निसाबी सरगर्मियों और इमदादी ज़राए की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, तलबा की सोचो फ़िक्र और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए। तो अज़ीज़ तलबा, जब असद अपनी ये दलील पेश करेगा कि ऐसे तालिब इल्म जो कि निजी तालीमी इदारों की भारी फ़ीसें अदा नहीं कर सकते, सरकारी तालीमी इदारे उनके लिए एक नेमत है। दोनों दोस्त या दोनों तलबा इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे और उनकी गुफ्तगू कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। आप अपने मुकालमे को कुछ इस तरह से तहरीर करेंगे कि दोनों आपस में मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे और ये तजवीज़ पेश करेंगे कि दोनों ही तालीमी इदारों को अपनी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। असद अपने दलाइल और तजवीज़ पेश करेगा कि निजी तालीमी इदारों के मालिकान और आला अफसरान को चाहिए कि वो फ़ीसों और सालाना फ़ंड्स में कमी करें ताकि ऐसे तलबा जो कि ज़्यादा भारी फ़ीसें अदा नहीं कर सकते वो भी वहाँ तालीम हासिल कर सकें। इसके अलावा हालात के मुताबिक वाजिबात की अदायगी में रियायत दी जाए ताकि थोड़ा थोड़ा करके तलबा अपनी फ़ीसों की अदायगी कर सके। इसके अलावा अली तजवीज़ पेश करेगा कि सरकारी तालीमी इदारों को चाहिए कि वो अपने इदारों में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा का तकर्रुर करें ताकि तलबा को मयारी तालीम हासिल करने में आसानी हो। इसके अलावा हम निसाबी सरगर्मियाँ जैसे कि खेल कूद, तकारीर, मुबाहिसे, मज़ामीन के मुकाबले वग़ैरह करवाए जाएं और तलबा के लिए इमदादी ज़राए
یعنی کمپیوٹرز، لائبریری وغیرہ میں کتابوں کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ طلبہ کی سوچ و فکر اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب مکالمہ نگاری کے چند اصولوں کے بارے میں جان لیجیے۔ امید ہے کہ ان اصولوں کے ذریعے آپ ایک بہترین مکالمہ تحریر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نمبر 1، کرداروں کے خیالات اور جذبات کو سادہ زبان میں پیش کرنا، فطری انداز میں گفتگو کا آغاز کرنا، بے ساختہ جملے تحریر کرنا، عامیانہ زبان کے استعمال سے گریز کرنا۔ مکالمہ نگاری میں توازن برقرار رکھنے کے لیے تمام کرداروں کو بولنے کے مساوی موقع فراہم کرنا، جملوں کو دہرانے اور منظر نگاری کرنے سے گریز کرنا۔ مکالمے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے خیال رکھنا کہ گفتگو مشکل اور خشک نہ ہو جائے۔ بحث برائے بحث کی بجائے کرداروں کا دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا۔ عزیز طلبہ، اب اپنے تفویض کار کی طرف آئیے اور تفویض کار کے بارے میں ہدایات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ مکالمہ نگاری کے لیے سمجھائے گئے اشارات کے مطابق دو دوستوں کے درمیان، نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں کے درمیان معیار کے تضاد کے موضوع پر مکالمہ لکھنے کی مشق کیجیے تاکہ بعد از تعطیل جماعتی جائزہ لیا جا سکے۔ عزیز طلبہ، اب اپنی معلمہ سائمہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔